Recording started. Started na? Okay. Recording started. Okay sir, good morning again to all of you. हाँ, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात तो करेंगे, बट उससे पहले मार्केट का थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। सर क्या खबर है, आप लोग भी मुझे थोड़ा अपडेट कर दो, देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सबसे पहले। इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात होगा, डिटेल्स में बात होगा। व्हाट इज द कंडीशन? यस, कल से ही लग रहा था मार्केट थोड़ा सा সাইডওয়েজ जाने वाला है। আমি নজর দিয়েছিলাম স্যার। তোর নজরেই হয়েছে যা দেখছি আমি। তো খুব হিংসে হচ্ছিল কেন মার্কেট বাড়ছে, কেন মার্কেট বাড়ছে। ভালোই সবার পোর্টফোলিও পজিটিভ হচ্ছিল, তুই নজর দিয়ে দিলি, এবারে পোর্টফোলিও নেগেটিভ হবে। কালকে বাজাজ ফাইন্যান্সের একদম কি হয়েছে? বাজাজ ফাইন্যান্স দারুণ বেড়েছে, বেড়েছে না পড়েছে? বাজাজ ফাইন্যান্সের খবর সুমিতের কাছে খুব থাকে। কি হয়েছে, বাজাজ ফাইন্যান্স কি করেছে রে সুমিত? সুমিতের আওয়াজ পাচ্ছি না। কালকে বিভৎস ছলান মেরেছে, লাফ মেরেছে, গ্যাপ আপ ওপেনিং দিয়ে বিভৎস লাফ মেরেছে। আমি এক্সাক্ট রিজনটা জানি না কেন লাভ মেরেছে। যাই হোক, সুমিত যদি বলতে পারে বলতে পারে। अच्छा चलो स्टार्ट करी। ठीक है, मार्केट में नॉर्मल इस तरह का अप डाउन तो रहता है सर, इसमें क्या है। और काफी दिन से मार्केट में मूवमेंट था, है ना, काफी दिनों से मूवमेंट था, तो नो डाउट थोड़ा सा तो साइडवेज बनता है। अब वापस अगर मार्केट को मोमेंटम मिलेगा। हाँ सुमित बोल। আরে আওয়াজ আসছিল না আওয়াজ। এবারে আসছে। হ্যাঁ, আরে বাজাজ কালকে তোমার এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং রয়েছে না, তার জন্য রিপোর্ট পাবলিশ করেছে, বুঝলে তো। আর আচ্ছা report একদম ঘাটিয়া এসেছে, ঠিক আছে। তাই? বেকার, আচ্ছা এখনো কথা বলারই নেই, প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার কোম্পানি শুধু সেলস ম্যানেজারদের ওপর আর এএফএম মানে যারা যারা রয়েছে অন মানে কোম্পানি ডাইরেক্ট পোর্টালে যারা রয়েছে বাজাজের, তাদের ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রফিটের 35% রেভিনিউ খরচা করে। একটা ঘোরার মতো অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা তোমার বাজাজ ফিনসার্ভের অ্যাপ, ওর জন্য 10,000 কোটি টাকা শুধু অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য লাগাচ্ছে। ওখানে হচ্ছে তোমার ডাইরেক্ট, মানে এটা কোনোদিন পসিবলই না। ওদের অবজারভেশন বলছে যে ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনে যেমন অনলাইন তোমার ডেলিভারি পারচেজ বা সেল হয় না, ওই রকম ওরা অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে সেম সিস্টেমে বাজাজ ফিনসার্ভে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ডাইরেক্ট ইএমআই হবে, ঠিক আছে। ওটা যদি পসিবল, ওটা কোনোদিন পসিবল না। বিকজ হচ্ছে কি, যে ওদের, আমি তো বাজাজে ছিলাম তাই জন্য আমি জানি যে ওদের অবজারভেশন মানে যেটা করতে চাইছে পসিবল না। কারণ হচ্ছে যে স্টোর গুলো ওরা ডাইরেক্ট মানে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট কি করে না, পুরো ওভারঅল ইন্ডিয়া চেন বানিয়ে রেখেছে, যে আর ডেলিভারি পার্সনও রয়েছে পার্সোনালি, ওর জন্য হায়ারিং করা রয়েছে। কিন্তু বাজাজের ডেলিভারি যে চেনটা, এটা একদম নেই, ঠিক আছে। এরা হচ্ছে অফলাইন ওদের যে স্টোর গুলোতে বাজাজ ফিনসার্ভের ইএমআই চলে, ওই স্টোর গুলোতে পার্টিকুলার ওরা মানে কিছু বড় বড় স্টোর আছে, যেমন আমি লালবাজার মানে কলকাতা সার্কেলে বলছি, লালবাজার, চাঁদনি মল, এইসব জায়গাতে স্টোর গুলোর মধ্যে ওরা অ্যাকোয়ার করে রেখেছে, এগুলো লিস্টিং করা রয়েছে ওদের বাজাজ ফিনসার্ভ মলের মধ্যে, ঠিক আছে। তো বুঝতে পেরেছি। ডাইরেক্ট যদি তুমি অর্ডার করো তাহলে মালটা যাবে, কিন্তু স্টোরের লোককেই ওটা ডেলিভারি করতে হবে, কিন্তু স্টোরের লোকের কাছে ওটা এক্সট্রা কস্টিং বেড়ে যায়, যার কারণে ওটা দিতে পারবে না। কিন্তু ওটা আবার বাজাজ বলছে কি ওটা আমাকে ইএমআই তে করে দিতে হবে, প্লাস হচ্ছে কি ওটা স্টোরের লোক ডেলিভারি করবে, ওটা ডিসকাউন্টে দিতে হবে। তাহলে কস্টিং, এত কস্টিং কোথা থেকে আসবে? স্টোর वाला কি कटोरा लिए বসবে নাকি যে बेसिकली देख, वो मैं तेरा बात समझ गया, मैंने तू जो बोलना चाहते तू मतलब तेरा मानना है कि बजाज जो कहना चाहता है ये मतलब पॉसिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्लिपकार्ट अमेजन का जो मार्केट है। देख एक चीज है कि बजाज फिनसर्व का ना ईएमआई का जो मोनोपोली है ना, माने मार्केट में सबसे ज्यादा कंज्यूमर। এইচডিবি
এইচডিবি কিছুদিন বাদে আইপিও লঞ্চ করবে। আমি এইচডিবি ডিআরএইচপি টা ফাইল করার আগে আমি দেখছিলাম, ঠিক আছে, ওদের মোটামুটি অনেক কম রেভিনিউ রয়েছে, কিন্তু ওরা মার্জিনটা প্রফিটেবলই রয়েছে, ঠিক আছে। ना मतलब बेसिकली उसका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली लो है, बजाज थोड़ा তো ज्यादा ही मार्केट पे एक्वायर की। আর তার থেকে বড় কথা কি জানো, যে আমি যেহেতু বাজাজের ছিলাম বলেই বলতে পারছি, বাজাজের ডিপিএফ এ ছিলাম আমি। তো এদের হচ্ছে কি, তোমার প্রতিটা কোম্পানির সাথে না একটা টাই আপ বলে জিনিস থাকে, টাই আপ স্কিম থাকে, ঠিক আছে। যেগুলো হচ্ছে কি, তুমি ধরো একটা ল্যাপটপ বেচছো বা একটা মোবাইল বেচছো বা এই যে কোনো এমআরএফ এর টায়ার বেচছো, সবকিছুর সাথে বাজাজ মার্চ করে রাখে, ঠিক আছে। এবার এদের যে তুমি ধরো আসুসের একটা ল্যাপটপ বেচছো বা ডেলের একটা ল্যাপটপ বেচছো, সেটা টাই আপ রয়েছে, তার জন্য কিন্তু আসুস একে পেমেন্ট করছে বাজাজকে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কি যে আসুস যদি বলছে, আসুস বা এইচপি বা ডেল যখন বলছে আমি তোমাকে একটা ডাব্বা ব্যাচের জন্য 7% দেবো, ওটাকে টাই আপ করার জন্য, মানে ওটা স্কিম, মানে 12/4 15/5 বুঝতে পারছি। স্কিম আছে। কিন্তু এবার এইচডিবি বলছে আমি এটা অনেক কমে তোমাকে দিয়ে দেবো, ও যদি 5% নেয় তো আমি 4% নেবো, 3% গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার যার কারণে কি হচ্ছে না, প্রতিটা ফিনান্স কোম্পানি এটা মানে যারা বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারার রয়েছে, ডেল, এইচপি, তারপর আসুস, এরা কি করছে না, এরা হচ্ছে কি তোমার বেসিক্যালি মানে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, বলছে আমি কেন তাহলে বাজাজকে, আমার 7%-এ 3% টাকা তো বেঁচে যাচ্ছে, কোম্পানি কস্ট কম হচ্ছে, আমি শুধু শুধু বাজাজকে কেন দিতে যাবো, তার থেকে ওটা আমি আমার এমপ্লয়ীদের দিয়ে দেবো, আমার এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে। কথাটা বুঝলি, এটাই হয়ে গেছে यस सुमित, चलो 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 ठीक है। सुमित, तेरा एनालिसिस एकदम बढ़िया है। अब आगे पता चलेगा कि सुमित का एनालिसिस सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट मैं एक चीज थोड़ा सा बता सकता हूँ कि এটা बजाज বেঁচে फाइनेंस। যাবে। না না, हाँ। বাজাজ বেঁচে যাবে, এটারও কারণ আছে। কারণ বাজাজ ফিনসেরভের মধ্যে কিন্তু শুধু ওই ইএমআই টা নেই, বাজাজের মধ্যে শুধু তোমার অনেক সেক্টর রয়েছে, যেমন বাজাজ আলিয়ান্স আছে, তারপর বাজাজ ইলেকট্রনিক্স আছে, সবকিছু ঢুকে আছে, তার জন্য প্রফিটটা এতটা জেনারেট করে। কিন্তু তুমি পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল যদি সেপারেট যদি আলাদা আলাদা ডিভিশন করে দেখো, তাহলে প্রতিটা মানে প্রফিটেবল সিচুয়েশনে রয়েছে মানা যায়, কিন্তু যেই পরিমাণ আগে প্রফিট হতো সেই পরিমাণ প্রফিটটা নেই। नहीं, कंज्यूमर कंज्यूमर लोन सेगमेंट में बजाज का एक अलग ही मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अभी बजाज के ऊपर पूरा हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में वापस आते हैं। हाँ सुमित। हम्म। ठीक है। अच्छा देखो सर, हम लोग स्टार्टिंग में आज बजाज के बारे में बहुत बात कर ली, लेकिन अ, अभी हम लोग ना सर वापस हम लोग का जो कोर एक्टिविटी है दैट इज नॉलेज एक्वायर करना, उसमें फोकस करते हैं। तो मुझे जितना दिखाई दे रहा है मार्केट मोटा मोटी साइडवेज में है। मार्केट को अपना काम करने दो। आप लोग बस इतना समझो कि मार्केट का अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके एज ए ट्रेडर आप कैसा स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में खेल सकते हो, आप उस पर फोकस करो। और ये जो मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा सिचुएशंस आपको मार्केट बार बार देगा। ऐसा नहीं कि ये एक बार देगा, आगे बहुत ऑप्शंस आएगा सर। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। आप लोगों को एक चीज मैंने टेक्निकल एनालिसिस में बताया था, आप लोगों को याद होगा, टेक्निकल के एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही आप लोग शायद सुने थे कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब मार्केट का जो मार्केट में जो होता है ना सर, इसका जो एक ट्रेंड सेटअप होता है ना, ये आप देखोगे ना तो आपको ना हर बार थोड़ा सा सिमिलर टाइप का नजर आएगा। जैसे आप देखो, एक डाउन ट्रेंड मार्केट था, फिर मार्केट साइडवेज रहा कुछ दिनों तक, ठीक है, फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, फिर वो अप ट्रेंड मार्केट को एक लेवल पे लेके गया, फिर उसके बाद वापस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, फिर कुछ दिनों तक साइडवेज रहा, फिर मार्केट में अप ट्रेंड आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज थोड़ा सा, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ा साइडवेज आ रहा है। मैंने ये जो सिचुएशन है ये मार्केट में आपको ना एक रेगुलर एक्टिविटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड सेटअप करके चलता है। और मार्केट में मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक्चुअली जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, सबका जो एक्टिविटी है मार्केट में ना, अल्टीमेटली मार्केट वही दिखाता है ना। इसलिए बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, माने मार्केट जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं। और वट एवर इकोनॉमिक सिचुएशन परफॉर्म होते हैं साइड बाय साइड, वो हर एक चीज कहीं ना कहीं मार्केट ग्रास कर लेता है, उन्हें अपने अंदर उस चीज को अ, अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। अब मार्केट जो भी दिखाए आपको उसको मानना पड़ेगा।
आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं मार्केट को नहीं मानता, मेरा एनालिसिस ज़्यादा सही है। ठीक है सर, आप जितना चाहे अपने साथ झगड़ा कर सकते हो, अपने साथ डिबेट लड़ सकते हो कि नहीं मैं सही था, मार्केट गलत है, लेकिन मार्केट जो है वही है सर। अब आपको मार्केट को लेके ही चलना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे होता है ना, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर फैमिली में से देखना कि आप जैसे सोचते हो फैमिली में आपका जो को पर्सनर है या फिर आपके साथ जो रहने वाले और भी लोग हैं, सबका मेंटेलिटी सेम नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा कि भाई फैमिली है, अलग मेंटेलिटी फैमिली बनाते हैं। सबका मेंटेलिटी अगर सेम हो जाए तो फिर वो फैमिली नहीं है। सिमिलरली अगर सबका मेंटेलिटी सेम हो जाए तो वो मार्केट नहीं है। सर आई डोंट नो आप लोग ये बात को समझ पाए कि नहीं पाए, बट इट्स अ हार्डकोर ट्रूथ कि मैंने रियलाइज किया तब मैंने आपको बताया। जैसे हर एक का मेंटेलिटी फैमिली में अलग होता है। बहुत कम केस आपको मिलेगा कि जहाँ पर सब एकदम हर चीज में इक्वल ओपिनियन दे रहा है कि हाँ मैं भी, हाँ उसका भी, हाँ उस तीसरे का भी हाँ। सिमिलरली मार्केट में भी सिमिलर से, ठीक है, मार्केट में भी ना एक ही घटना पे, एक ही इवेंट पे अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करेगा। ठीक है, एक इवेंट पे, एक पर्टिकुलर इवेंट पे अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं इसी से डिपेंड करता है कि कोई बायर बनता है तो कोई सेलर बनता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट मार्केट में, मतलब इसी चीज मार्केट बनाते हैं। अच्छा, मार्केट में क्या है, बाजार जो होते हैं, कोई भी बाजार, ठीक है, चाहे वो आपके घर के बगल वाला सब्जी बाजार हो, या फिर फ्रूट्स का मार्केट हो, कपड़ा का मार्केट हो, ग्रोसरी का मार्केट हो, मार्केट माने वहां पर बायर सेलर होगा तभी मार्केट है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इवेंट पे जब बायर बन जाता है, कोई कोई सेलर बन जाता है, तो वो मार्केट को फॉर्म कर देता है। और ये डिफरेंट मेंटेलिटी है जो मार्केट को मार्केट बनाता है। अब इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते भले ही कितना भी डिस्प्यूट होना हो, है ना। ये हर एक का जिंदगी में होता है सर, ऐसा बात नहीं है, कम ज्यादा चलता रहता है। अच्छा सर, आप क्या क्या बोल देते हो। नहीं सर, मैं तो सच बताया, ये तो बस रियलाइजेशन के ऊपर है कि आप रियलाइज कर पाते हो कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग अभी बात करेंगे सर स्ट्रेटेजी पे। तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर बिहेवियरल फाइनेंस बताया था, है ना। बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियरल फाइनेंस क्या था, मैंने बेसिकली बिहेवियरल फाइनेंस ये था सर कि ये आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केट जो है वो साइकोलॉजी पे चलता है। ठीक है, बिहेवियरल फाइनेंस क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे जो मार्केट बिहेव करता है उसे बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, माने अलग अलग सिचुएशंस होते हैं और उस सिचुएशंस में ट्रेडर क्या बिहेव कर रहे हैं वो एक्चुअली बिहेवियरल फाइनेंस का पार्ट है। तो मैं इसको थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट भी किया था और उस स्ट्रैटेजी का नाम था, बड़ा ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, बेसिक लेवल स्ट्रैटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड, जिसपे ये मल्टी लेग स्ट्रैटेजी था सर। ये मल्टी लेग स्ट्रैटेजी था, माने कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस में आपके सामने ऑप्शन चेन तो आपको पता ही है, कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस में आप कॉल बाई कर रहे हो या कॉल सेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्ट्रैटेजी नोट के अंदर कि बाई वन एटीएम कॉल ऑप्शंस, ठीक है, एंड सेल वन ओटीएम कॉल ऑप्शंस। एंड आपको पता है एटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट क्या है ना। अरे पता है कि नहीं, बोलो सर। चाहे आप निफ्टी में कर लो, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर लो, कहीं पर भी आपको ट्रेड सेटअप बनाना हो, आपके सामने ये जो बुल कॉल स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका और भी नाम है, इसको बुल कॉल स्प्रेड भी कहते हैं, इसको नेट डेबिट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, है ना। तो इसमें ये एक मल्टी लेग स्ट्रेटेजी था सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप एक कॉल ऑप्शंस, एटीएम कॉल ऑप्शंस को बाई करते हो और एक ओटीएम कॉल ऑप्शंस को सेल करते हो। और ऐसे सिचुएशंस में आपके सामने अलग अलग सिनारियो जनरेट होता है, जिसमें आपका नेट डेबिट हुआ था सर। ठीक है, बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट देयर इज नेट कैश फ्लो आपका हुआ था। आपने 25 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया था और 79 रुपीज का प्रीमियम आपने पे किया था। ये तो आपको पता है सर, आप कभी भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से जब भी कोई ऑप्शंस को आप, कोई भी ऑप्शंस को जब भी आप बाई करोगे, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, सीई माने क्या है, कॉल ऑप्शंस। ठीक है, इसको आप अपना ये जो यहाँ पर अलग स्ट्राइक दिया हुआ है, आप चाहो तो अपना स्ट्राइक लिखो यहाँ पर, जैसे अभी 19,000 के आसपास चल रहा है ना, तो आप ऐसे 19,000 के हिसाब से लिखो। ठीक है,
19,000 के हिसाब से लिखोगे 19,000 कॉल ऑप्शन, ये एटीएम हो जाएगा ना, क्योंकि 19,300 समथिंग चल रहा है, तो 19,100 200 ये सब एटीएम ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अपनी हिसाब से बाई करो। तो जब भी आप बाई करने जाओगे आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, है ना। जब भी आप बाई करने जाओगे आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। हाँ बोल, क्या हुआ? এখানে এখানে স্যার ধরুন ওই ওটিএম আর এটিএম মানে বাই আসতে হচ্ছে ওটিএম আর এটিএম দিয়ে করছি, তো हाँ। আমি দুটোই যদি ওটিএম রেখে করি তাহলে কি অসুবিধা আছে? असुविधा क्या है वो सब आगे आगे पता चलेगा, सुविधा असुविधा का खेल पता लग जाएगा, ये पूरा না মানে कैलकुलेशन है। দুটো OTM হয়, हाँ बोल, और एक बार बोल। দুখানা ওটিএম হয়, যদি আমি বাই করলাম ওটিএম সেভ করলাম OTM। तो कर सकता है, कोई कोई मना नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा सर, ठीक है, कि तुम्हारा हिसाब क्या है। जैसे मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, तुमको याद आ जाएगा। ओके संपत, कि लास्ट क्लास में एक बार याद कर, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाया था, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाया था, इस स्ट्रेटेजी के अंदर तुमने क्या देखा था, तुम्हारा स्ट्रेटेजी पे ऑफ क्या था, कि तुम ना एक प्रीफिक्स स्ट्रेटेजी बनाए थे। ये प्रीफिक्स स्ट्रेटेजी है, तुमको पहले से पता है कि अगर तुम एटीएम बाई करते हो और ओटीएम सेल करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करके, तो उस पर मार्केट आई थिंक 7,846 ऐसा कुछ था, और तुमने सोचा था कि मार्केट इतने में एक्सपायर करेगा, या फिर बाई करना है तो फिर आप सोच रहे कि मार्केट आगे जाएगा, अगर मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तुमने ना ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे लॉस करना है तो मैं 54 का लॉस के लिए रेडी हूँ, और अगर मैं प्रॉफिट करूंगा तो मैं 46 के प्रॉफिट के लिए रेडी हूँ। माने बेसिकली ये कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला या लिमिटेड रिस्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें आप अपना रिस्क को भी लिमिट कर दिए और प्रॉफिट को भी लिमिट लगा दिए, प्रॉफिट में भी लिमिट लगा के और रिस्क में भी लिमिट लगा के आप पहले से प्री डिटरमाइन कर दिए। डोंट वरी, ये स्ट्रेटेजी आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सर ये स्ट्रेटेजी ना सुनने में थोड़ा इजी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्ट्रेटेजी, बट सर इसका प्रैक्टिस और घर पे आप इसके साथ ना समय बिताओ, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। सर मैं तो बोलूँगा दिमाग लगा सकते हो नहीं, ज़रूर लगाना, घर में बैठे बैठे डिसीजन लेना सर, ठीक है, ये कैलकुलेशन है, हवा में बात नहीं करना है सर, ये सब कैलकुलेशंस है। आप देखो कि आपको कौन सी चीज़ में क्या बेनिफिट हो रहा है। शुरू शुरू में आपका स्ट्रेटजी फेलियर भी हो सकता है, शुरू शुरू में आपका स्ट्रेटजी फेलियर भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेलियर ही होगा, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में ना स्ट्रेटजी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट समय के साथ साथ आप देखना कि आपका स्ट्रेटजी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। जब भी स्ट्रेटजी का बात करते हैं ना, मुझे एक क्रिकेटर का नाम याद आता है, आपको कोई क्रिकेटर याद आ रहा है सर? ऐसे कल इंडिया ने जीत लिया ना वो फुटबॉल में, फुटबॉल में हाँ, इंडिया सर। चैंपियन हो गया ना। 5-6 বলে জিতে। কার সাথে ফাইনাল, কার সাথে খেললো? কুয়েত। হ্যাঁ কে ছিল ফাইনালে? इंडिया অপোনেন্টে কে ছিল? কুয়েত ছিল স্যার, কুয়েত। कुवैत, कुवैत, अच्छा चलो सर, फुटबॉलर भी बस एक ही इच्छा है सर, मरने से पहले कि इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले, मजा आ जाए। कब होगा पता नहीं, बट उम्मीद हाँ 2000 ভালো চান্স আছে, 26 এর চান্স হতে পারে। হতে পারে, ভারতের র্যাঙ্কিং এখন অনেক আচ্ছা। পিছিয়ে আছে, ইন্ডিয়া का फुटबॉल रैंक अभी 100 আছে না। এশিয়া কাপে স্যার জিততে হবে ইন্ডিয়াকে, এশিয়া কাপে স্যার জিততে হবে, আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে কোয়ালিফায়ারে জিততে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কোয়ালিফায়ারে জিততে হবে, আর তারপরে এবছর বিশ্বকাপে 26 বিশ্বকাপে 36 টিমের দিকে 38 টিম করে দিচ্ছে, এর জন্য সুবিধা হয়ে গেছে। ওকে, इंडिया अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक बार आ जाए ना सर, आप सोच भी नहीं सकते, जैसे क्रिकेट जैसे पैसा बनाया ना इंडियन इकोनॉमी के लिए, फुटबॉल भी बनाएगा, फुटबॉल भी बनाएगा, बस उसका उस चीज का थोड़ा वेट है। अच्छा चलो सर अभी उसमें बात नहीं करते, चलो ध्यान। जैसे मैं क्रिकेट में एक क्रिकेटर का नाम याद आया मुझे स्ट्रेटेजी के ऊपर, दैट इज धोनी। सर मैंने बहुत सारा प्लेयर देखा क्रिकेट में, बट धोनी जैसा स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने वाला प्लेयर बहुत कम देखा। मतलब सीरियसली इसके दिमाग में ना ऑल टाइम स्ट्रेटेजी चलता रहता है,
ऐसा नहीं कि धोनी कभी फेलियर नहीं हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा नहीं है कि कभी फेलियर नहीं हुआ है, बट ये इतना स्ट्रेटेजाइज कैप्टन रहा है इंडियन टीम के लिए, इससे सीखना है सर। क्या सीखना है कि कैसे स्ट्रेटेजी बना के आप टीम को विन के नजदीक ले जा सकते हो। इनका ये भी रिस्क लेता था, बट इसका रिस्क ना काफी कैलकुलेटिव होता था, मतलब इतना कैलकुलेटिव रिस्क और इतना कूल, मतलब कूल दिखने में लगता है बट इतना कूल है नहीं सर। लोग बोलते हैं कि धोनी कूल है, ये रिपोर्टर लोग बताते हैं, बट रियल में कोई भी कप्तान जब ग्राउंड में होते हैं ना। লাস্ট অব্দি টেনশনে থাকে, हाँ हाँ बोल। এন্ড বল অব্দি টেনশনে থাকে। हाँ एग्जैक्टली सर, वो एंड तक अपना मतलब उम्मीद नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो यही चीज है कि एंड तक एक स्ट्रेटेजी बना के रखना कोई आम बात नहीं है, दैट इज द पॉइंट। तुम एक मैच को चाहो तो देखो सर, तुम घबरा के क्या हो जाता है ना, जैसे तुम लोग स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग इस डर में सेल करके निकल जाते हैं कि और लॉस हो जाए तो। ध्यान से समझना सर, ठीक है। ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि लोग डर जाते हैं कि अपना पोजीशन को जल्दी कवर अप कर लेना चाहता है, क्योंकि उसको ठहरना नहीं आता, या फिर ठहरना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं स्टे करूं, बट उसको डर लगता है अगर लॉस हो जाए तो। सिमिलरली क्रिकेट में जैसे होता है क्या, कि अगर तुम मैच को एंड तक खींचोगे तो हो सकता है कि तुम जीतो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम हारो, कुछ तो होगा। लेकिन अगर तुम ज्यादा हड़बड़ कर लोगे, तुमको अगर लगेगा कि मानो जैसे मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने उन दिनों सर 365 रन, 359 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, कोई मामूली नहीं है। ऑन दैट टाइम 359 इज अ बिग स्कोर। मैंने 300 ऑन दैट टाइम रोज रोज नहीं होता था, आजकल जैसे एक रेगुलर हो गया, बट 2002-3 के टाइम पे इतना रेगुलरली नहीं होता था, बहुत रेयर होता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इतना मारा इंडियन बॉलर्स को कि 359 बनाया। अब इंडिया के पास बैट्समैन था, सचिन था, सहवाग था, गांगुली था, द्राविड था, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर। बट सर ये लोग इतना जोर से, इनको झटका लग गया था कि जैसे सचिन का नाम मैं लूंगा, सचिन इतना जोर से इनको टेंशन आ गया था कि मैकग्राथ के फर्स्ट ओवर में मैकग्राथ को छक्का लगाने के लिए रेडी हो गया, जो सचिन के नॉर्मल कैरेक्टर के अगेंस्ट में। ये मैंने देखा था, एकदम लाइव देखा था, और वो चीज मैं बाद में एनालिसिस भी किया था। और जब मैं धोनी के कैप्टनसी में इंडियन टीम को देखा बाद में, तो मैंने इस तरह का एटीट्यूड नहीं देखा सर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर ज्यादा घबरा जाओगे ना तो आप हार जाओगे, वही चीज যেটা मैं बता। কোহলির হচ্ছে, हाँ हाँ बोल। যেটা বিরাট কোহলির হচ্ছে, কে রিস্ক নিচ্ছে কিন্তু ক্যালকুলেটিভ না। ठीक है, अब विराट कोहली ये गड़बड़ बीच में किया था सर, ठीक है। तो वही चीज है कि ধোনির आप। দিক থেকে অনেক better, हाँ हाँ ধোনির দিক থেকে অনেক বেটার ছিল। রান দিতে এলেও টেনশনটা প্রথমেই নিত না, অন্য স্ট্র্যাটেজিতে খেলে দিত। 4-6 মাত্র এখন মানে কোনো বলে 2 রানই মারার চেষ্টা করতো। हाँ, वही चीज ठीक है। वही चीज आपको मैं क्यों बताया, क्योंकि अगर आप कभी क्रिकेट समझो ना समझो डजेंट मैटर, बट कभी धोनी का जो पूरा मैच देखना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। ऐसे किसी का मतलब कोई बता दिया धोनी का स्ट्रेटेजी ऐसा है नहीं, आपको अगर पूरा मैच अगर आप रीड कर सकते हो ना, क्रिकेट देख के 6 घंटा बैठना पड़ता है टीवी के सामने, पेशेंस का भी मैटर है और इंटरेस्ट का भी। आप अगर देखे हैं वो तो आपको समझ में आएगा कि एक मैच को जिताने के लिए एक प्लेयर कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे क्रिकेट में मैंने ऑब्जर्व किया, अगर किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो फुटबॉल में भी सिमिलर चीजें आपको मिलेगा। जो बंदा जितना अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकता है, और जितना पेशेंसफुली और जितना टेम्परमेंट के साथ वो स्ट्रेटेजी को निभा सकता है, वो बंदा स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल होगा, क्रिकेट में भी होगा, फुटबॉल में भी होगा। ये एक कॉमन कैरेक्टर है। चलो ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को मैंने ये चीज लास्ट दिन बताया था कि अल्टीमेटली आप अपना प्रॉफिट को भी लिमिट लगा दो, और आप अपने लॉस को भी लिमिट लगा दो, इसके ऊपर आपको पता है। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी आप लोगों ने देखा था। अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा, मैं भी आपके साथ स्ट्राइक सिलेक्शन में बात करूंगा। स्ट्राइक सिलेक्शन माने सर, जैसे देखो यहाँ पर आपको पता है सर कि कितना सारा स्ट्राइक्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं करेंट निफ्टी में बात करूं, सिर्फ निफ्टी में बात करूं, तो निफ्टी का करेंट प्राइस है, अंडरलाइन बोलते हैं इसको, है ना। करेंट निफ्टी का करेंट अंडरलाइन चल रहा है 19,391.45, ये करंट है एकदम। आपके सामने स्ट्राइक अवेलेबल है आईटीएम जोन में भी, आप देखोगे तो काफी सारे में। अगर मैं कॉल ऑप्शंस की नजर से देखूं, अगर आप कॉल से देखो तो भी, या पुट से देखो तो भी,
ठीक है, आपके पास ITM का भी ऑप्शन स्ट्राइक अवेलेबल है। 17,000 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर, 17,000 से दिख रहा है। और इधर OTM जोन में अगर चलोगे तो 20,900 तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर। तो सर इतना सारा स्ट्रेटेजी के अंदर कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बेहतर होगा, या फिर एज ए ट्रेडर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्रॉफिट बेहतरीन करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक ही बार में कर लो, मैं ये नहीं कहना चाहता। दो तरह का कॉन्सेप्ट बताएं, अगर कभी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगा। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी करना सीख जाओ तो भी अच्छा है ना। मतलब शॉर्ट रन से भी मैच जीता जा सकता है, जैसे अभी संपत बता रहा था, छोटा छोटा खाओ बट अच्छा खाओ, रेगुलर खाओ। और एक होता है कि एक ही बार में बड़ा मार दो, ठीक है, छक्का लगा के। डिपेंड करता है आपका मेंटेलिटी पे और डिपेंड करता है आपके गेम प्लान पे, माने आप किस तरह से मार्केट को प्लान कर पा रहे हो उस पे। तो ये सभी चीजें मैटर करता है स्ट्राइक को सिलेक्ट करने में। तो अभी ध्यान से समझना सर कि स्ट्राइक सिलेक्ट हर स्ट्रैटेजी में अलग अलग होगा ऑब्वियसली, बट स्ट्राइक सिलेक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है। जैसे हाउ डू यू क्वांटिफाई मॉडरेटली बुलिश और बियरिश। अब सवाल ये उठता है, ये जो बुल कॉल स्प्रेड है ये स्ट्रेटेजी कब अपनाना चाहिए। ये बुल कॉल स्प्रेड का स्ट्रेटेजी तब अपनाना चाहिए जब आप मार्केट के ऊपर कंप्लीट बुलिश हो कि मॉडरेट बुलिश हो। प्लीज टेल मी सर, ये स्ट्रेटेजी कब अपनाना चाहिए, बोलो ना। मॉडरेट। मॉडरेट बुलिश पे, है ना। बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड, दोनों केस में मैं आगे आता हूँ पुट में। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड में सिमिलर स्ट्रेटेजी है, पुट भी सिमिलर, जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट में बात करेगा बट कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप मार्केट के बारे में मॉडरेट बुलिश हो या मॉडरेट बियरिश हो तो फिर आपके लिए ये बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वुड यू कंसिडर 5% मूव ऑन इन्फोसिस एज मॉडरेटली बुलिश। सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन है। मानो कि इन्फोसिस में 5% मूव दिख रहा है आपको, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन्फोसिस 5% मूव कर सकता है, तो क्या इसको आप मॉडरेट बुलिश मानोगे। क्वेश्चन है, जवाब तो आपको मिलेगा। और शुड इट बी 10% एंड अबव, क्या 10% या उससे ज्यादा मूव होने से आपको मॉडरेट लगेगा। व्हाट अबाउट द इंडेक्स सच एज बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये सब इंडेक्स ट्रेडिंग भी होता है, आप लोगों को पता है। ऑप्शन में तो हम लोग इंडेक्स में ट्रेड ज्यादा लेते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेड ज्यादा लेते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड ज्यादा लेते हैं, है ना। व्हाट अबाउट मिड कैप स्टॉक, जैसे कि यस बैंक, माइंडट्री, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, ऐसे बहुत सारे हैं जो मिड कैप है, माने मीडियम साइज मार्केट कैपिटल है इनके पास। ठीक है, लार्ज कैप नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, मीडियम कैप। इंडिया में ऐसे कंपनी का संख्या ज्यादा है, इंडिया में मिड कैप कंपनीज का संख्या ज्यादा है, जो निफ्टी 500 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वेल क्लियरली देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल सॉल्यूशंस हियर। माने ऐसा नहीं कि 5% 10% का जो आप मूव के बारे में सोच रहे हो ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इन्फोसिस के लिए क्या होगा, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के लिए क्या होगा, यस बैंक, माइंडट्री, स्ट्राइड्स जैसे मिड कैप कंपनीज के लिए क्या होगा, या फिर कोई भी मिड कैप कंपनीज आप देख सकते हो। मिड कैप का भी अलग से आपको मिल जाएगा ना, जब हम लोग ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ये देखो सर, यहाँ पर आपको निफ्टी भी मिलता है, फिनेंस निफ्टी भी मिलता है, बैंक निफ्टी मिलता है, मिड कैप निफ्टी भी मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिड कैप के अंदर जितना सारा कंपनीज है उसका ऊपर बना हुआ निफ्टी है, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, एकदम NSE के साइड में जाके कौन से कंपनीज इसके अंदर आता है आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 चेक कर सकते हो, वैसे ये भी चेक कर सकते हो। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रोज की तरह मांगता हूँ मैं, तो चलो। तो क्लियरली कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं है, ठीक है, कि जिसके ऊपर डिपेंड करके आप सारा खेल को कॉमनली आइडेंटिफाई कर लोगे। इसलिए क्या बोला, देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल सॉल्यूशन। तो देखो ये एक जूता नहीं है कि सभी के पैरों में फिट हो जाए। ठीक है, सो वन कैन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई द मॉडरेटनेस ऑफ द मूव बाय इवैल्यूएटिंग द स्टॉक एंड इंडेक्स वोलेटिलिटी। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग वोलेटिलिटी में इतना बात क्यों किए थे, है ना। जब हम लोग ग्रीक पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोग वोलेटिलिटी पे बार बार बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये वो। नाउ बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी आई हैव डिवाइज्ड फ्यू रूल्स। ठीक है, अब क्या है देखो, वर्क्स ऑल राइट, ठीक है, अच्छा काम करते हैं ट्रेडर के लिए। यू मे वांट टू इम्प्रोवाइज ऑन इट फर्दर इफ द स्टॉक इज हाईली वोलेटाइल। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मैंने अपने एवरेज पॉइंट से
जैसे अगर मैं इसमें अदानी का शेयर ले सकता हूँ, ठीक है, कंपेरेटिवली रिलायंस का शेयर कंपेरेटिवली लो वोलेटाइल है सर, क्या बोलोगे? रिलायंस और अदानी के शेयर में अगर आपको कंपेयर करने दिया जाए, कौन सा स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है? बोलो, आप ही बोलो, एक आम ऑब्जर्वेशन से, अदानी है ना? नो डाउट अदानी ज्यादा वोलेटाइल है ना? अदानी का शेयर आपको ज्यादा वोलेटाइल नजर आएगा कंपेयर टू रिलायंस। रिलायंस लेस वोलेटाइल है, ये अपने एवरेज लाइन से ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होते हैं सर, लेकिन अदानी कंपेरेटिवली अपनी एवरेज लाइन से ज्यादा ही अप एंड डाउन होता है, ठीक है, ज्यादा ही स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज मिल जाएगा जितना आप ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे कि कौन सा स्टॉक में डेविएशन ज्यादा है और कौन सा स्टॉक में कम है। ठीक जैसे आपने रिलायंस अदानी को आइडेंटिफाई कर लिया ना, वैसा किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज में समय दोगे ना, समय बहुत बड़ी चीज है सर, किसी भी चीज में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम दोगे तो बदले में आपको कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो मिलेगा। प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग किसी भी चीज में टाइम ज्यादा देना पसंद नहीं करते और हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, बिना टाइम के रिजल्ट नहीं मिलता सर, है ना? इवन एग्जाम का भी रिजल्ट अगर देखो आप, ठीक है, पास फेल, ठीक है, जो भी है, आप जब भी आप पास कर जाते हो आप खुश हो जाते हो और आप भूल जाते हो बहुत सारा चीज, लेकिन आप फेल करते हो तो आपको लगता है कि भाई फेलियर हो गया। लेकिन जब हम लोग फेल करते हैं ना, तो हमें पूछना चाहिए खुद को कि क्या मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था पास करने लिए, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स एंड जो भी करियर ऑप्शंस आपने चूज किया, ठीक है। अगर आपने सफिशिएंट टाइम दिया था तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा सर, आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका सफिशिएंट टाइम नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको तो लैग तो होगा सर, ये होता है सर, ये होता है। चाहे आप बचपन में नहीं मानते थे बट आजकल आप मान जाओगे, मुझे पता है। इफ द स्टॉक इज हाईली वोलेटाइल देन कंसिडर करो कि मूव 5 से 8% हो, मॉडरेट। बहुत हाई वोलेटाइल है, 5-8% अगर मूव करता है, मॉडरेट। या अपना खुद का ऑब्जर्वेशन भी आप ला सकते हो। हाउएवर इफ द स्टॉक इज नॉट वेरी वोलेटाइल, तो फिर 5% मॉडरेट मान सकते हैं। अगर लो वोलेटाइल है 5% मॉडरेट है, अगर हाई वोलेटाइल है 5 से 8% वोलेटाइल है। इंडिसेस के लिए, इंडिसेस माने निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के लिए 5% मॉडरेट मूव माना जाता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में निफ्टी कोई एक स्टॉक का खेला नहीं है ना। निफ्टी जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का खेला थोड़ी है, निफ्टी में 50 स्टॉक होता है। निफ्टी के अंदर ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी में 50 स्टॉक्स है सर। तो फिर एक स्टॉक का वोलेटिलिटी और 50 स्टॉक का वोलेटिलिटी, एवरेज में ये कंपेरेटिव चांस क्या है कि ये एवरेज में कम ही रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाओगे कोई भी, उसका वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा रहने का चांसेस है, क्योंकि वो एक ही सिंगल स्टॉक है ना? जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज का आप लोग अगर कभी पोर्टफोलियो चेक करते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज का क्या है, वो अपना डाइवर्सिफिकेशन कैसे करता है? डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, आपका वोलेटिलिटी कम हो जाता है। हाँ सर, यही सिस्टम है, बताता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड था, ये मैं पहले भी आपको दिखाया शायद। मैं आजकल सर कोई भी पूछता है ना, तो मैं वोलेटिलिटी या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही वाला आ जाता है मेरे सामने, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सर, कितना सारा स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो जितना आप अपने 30,000 करोड़ इसके पास है, ये पराग पारिक फंड के पास है 30,000 करोड़। अब 30,000 करोड़ को इसने इन्वेस्ट किया अलग अलग कंपनीज में। अब ये जितना कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करेगा, जितना कंपनी में ये अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टॉक में वोलेटिलिटी हाई हो सकता है, सिंगल स्टॉक में या 3-4 स्टॉक में वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली हाई हो सकता है। तो वैसा ही ये कंसिडरेशन यहाँ पर लिया गया है कि हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि अगर निफ्टी या इंडेक्स है, ठीक है, इंडिसेस भी, इंडेक्स और इंडिसेस एक ही चीज होता है। एक मतलब एक्चुअली ये सिंगुलर प्लूरल में कहा जाता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते हो, मेरा इंग्लिश का नॉलेज खराब है सर, बट वही इंडेक्स इंडिसेस उसी तरह से। आगे देखो सर, अच्छा, 5% एज मॉडरेट माना जा सकता है। नाउ कंसिडर, अब आगे और बढ़ते हैं सर। यू हैव अ मॉडरेटली बुलिश व्यू ऑन निफ्टी 50। आपको लगता है कि निफ्टी 50 मॉडरेट बुलिश है, मैंने आपको ये लग रहा है। अच्छा, ये लगना जो है ना, ये जो आप फील करते हो, ये क्या हवा में फील करते हो या फिर कुछ फैक्टर हैं जो आपको आइडिया देता है? टेक्निकल फैक्टर, फंडामेंटल फैक्टर एज वेल एज क्वांटिटेटिव फैक्टर, हवा में थोड़ी होता है सर।
हाँ सर, आपको अगर किसी कारण से लगा कि निफ्टी 50 में अभी मूवमेंट मिलेगा, तो आप क्या ये हवा में फील कर लेते हो, मैंने ऐसे ही चलो मान लेते हैं। अरे क्या मान लेते हैं, क्यों मानेंगे? मानने के पीछे कुछ वजह तो होगा। एक तो टेक्निकल फैक्टर है ना, ऐसा नहीं कि चलो मान लिया, लो मान लिया हमने, ऐसा गाना गाने गाते गाते। तो टेक्निकल फैक्टर होगा, फंडामेंटल फैक्टर होगा, मतलब इकोनॉमिक कुछ तो बातें हैं सर जो कंपनी का शेयर को या फिर निफ्टी में कुछ तो असर दे रहा है। तो फंडामेंटल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर एज वेल एज क्वांटिटेटिव फैक्टर। ठीक है, सारा फैक्टर जब मैच हो जाए तब आप अपना परसेप्शन बनाओ। आपका परसेप्शन हवा में नहीं बनेगा, परसेप्शन बनने के पीछे भी कुछ कारण होता है। तो मेन 3 कारण यही है, टेक्निकल, फंडामेंटल एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ठीक है, मैंने मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। अब इधर आगे चलो सर। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश है, तो आपका निफ्टी 50 आपको लग रहा है कि मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव में। गिवन दिस, which are the strikes to select for the bull call spread? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि मार्केट मूव करेगा, तो फिर आपका स्ट्राइक क्या होगा बुल कॉल स्प्रेड में? इज दी एटीएम प्लस ओटीएम कॉम्बो दी बेस्ट पॉसिबल स्प्रेड? अभी संपत मुझे पूछ रहा था कि सर अगर मैं दोनों ही ओटीएम लूं तो क्या होगा। सर वही चीज है, सवाल है, ठीक है, तुम्हारे मन में जो सवाल है वही सवाल का जवाब आगे आगे मिलेगा। क्या एटीएम प्लस ओटीएम कॉम्बो बेस्ट पॉसिबल स्प्रेड होगा? द आंसर टू दिस डिपेंड्स ऑन गुड ओल्ड थीटा। ये थीटा पे डिपेंड करता है। आप लोगों को पता है कि थीटा क्या बताता है, मैंने रिसेंटली थीटा कवर अप करके आया था। अच्छा आगे देखो सर, there is a bunch of graphs that will help you identify the best possible strike based on time to expiry. अब थोड़ा ऑब्जर्व करना सर, ये आपको मिल जाएगा। ऐसा ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकते हो। ये पुराने डेटा से बनाया गया है, आप चाहो तो इसको करेंट डेटा से भी बना लो। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो एक्सेल में बन जाता है सर, हाँ एक्सेल सीट में बन जाएगा, इसमें क्या है। तो ये जो बार ग्राफ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसमें आपके सामने ना, आप एग्जाम्पल को देखो, इसमें आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बार ग्राफ है हर केस में, देख सकते हैं आप। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पहला ग्राफ को अगर आप देखोगे, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या हो सकता है, इसका एक आइडिया देना चाहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितना हो सकता है, इसका एक आइडिया दिया है। पॉजिटिव प्रॉफिट कब हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट कब हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वर्सेस स्ट्राइक, टारगेट अगर 5 दिन में हिट होगा, ये अजम्पशन है कि अगर आपका टारगेट 5 दिन में हिट होगा तो क्या सिचुएशन बन सकता है। दूसरा अजम्पशन ये है सर, टारगेट अगर 15 डेज में हिट होगा तो क्या हो सकता है। तीसरा अजम्पशन ये है कि टारगेट हिट होने में 25 डेज है एंड टारगेट हिट ऑन एक्सपायरी, टारगेट हिट ऑन एक्सपायरी। अब ये 4 ग्राफिकल सिचुएशंस आपके सामने हैं, ये ग्राफिकल सिचुएशंस आपके सामने हैं। अब आगे देखो सर, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर हुआ क्या है। अब ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करने से पहले निफ्टी स्पॉट एज्यूम कर लिया यहाँ पर 8000। अब इसको आप निफ्टी मानो, कोई पर्टिकुलर शेयर का दाम मानो, या करेंट लेवल निफ्टी मानो, जो मानना है मानो, बट आप यहाँ पर एजम्पशन करके चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है ना, मान के चल रहे थे निफ्टी 8000 है स्पॉट मार्केट में। कहां पर? स्पॉट मार्केट में। ठीक है, स्पॉट मार्केट में निफ्टी 8000 है। स्टार्ट ऑफ द सीरीज इज डिफाइंड एज एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज। मान के चलते हैं कि अभी 15 दिन बाकी है। स्टार्ट ऑफ द सीरीज को माना गया एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज, माने अभी मार्केट एक्सपायर होने में 15 दिन लगेगा। ठीक है, माने जैसे आप लोगों को पता है एवरी थर्सडे मार्केट एक्सपायर होता है। एंड ऑफ द सीरीज इज डिफाइंड एज एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज। The bull call spread is optimized and spread is created within 300 point difference. अब आप एक bull call spread बनाओगे जिसमें आपका 300 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। मैं समझाता हूं क्या है। The thought here is that market will move up moderately. आपका थॉट क्या है? पूरा खेल तो थॉट में ही चलता है, अरे जिंदगी थॉट में चलता है सर। हाँ, आप जो सोचते हो वही आप बनते हो, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब ऑब्जर्वेशन तो मेरे इतना दम नहीं है, मैं बता दूं, मैंने स्पिरिचुअल एक ऑब्जर्वेशन से, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन ऐसा है, बोलते हैं कि आप जैसे खाते हो वैसा आप सोचते हो,
और आप जैसे सोचते हो वैसा आप बनते हो। आपने सुना कभी ऐसा? ऐसा मैंने तो पढ़ा सर, बोलते कि आपका भजन माने जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो आपका भोजन जो है उसी से डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा होगा। तो इसलिए पुराने जमाने में इंडिया में ऐसे स्पेशली खाने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। कोई बोलते है कि कोई कुछ भी खाए क्या फर्क पड़ता है, बोलता है सर, हम लोग कई बार डिबेट करके बोलते हैं कि किसी के खाने पे क्या है, कोई कुछ भी खा ले, है ना, जैसे चाइनीज लोग हर चीज खाते हैं, ठीक है, इंडिया में भी अलग अलग कंट्रोवर्सी है खाने को लेके। लेकिन सर यहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं करूंगा, बस इतना छोटा सा चीज बोलूंगा कि सर एक एरिया में लोग क्या खाते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहां का लोगों का मेंटेलिटी कैसा होगा। मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। आप ये चीज कभी ऑब्जर्व करना, आपको पता लगेगा, ठीक है। इवन आप लोग घर पे भी देखना ये चीज मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली एकदम इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशंस में शायद ना हो, बट एक ओवरऑल एग्रीगेट में सोचोगे तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए जो भी हो, तो थॉट पे बहुत कुछ जाता है, मतलब आपका सोच आपको बनाएगा, नो डाउट। तो जो भी हो, द थॉट हियर इज दैट मार्केट विल मूव अप मॉडरेटली बाय अबाउट 3.75%। ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर 3.75% मूव करेगा। तो अगर 8000 से 8300 में जाना है तो ये 3.75% आ जाएगा। करके देखो तो थोड़ा सा, 8000 से 8300 क्या 3.75 हो रहा है? हो रहा है सर, हुआ ना? अगर मार्केट 8000 से 8300 में जा रहा है तो 3.75% मूव कर रहा है। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मैं चेकिंग कर लिया सर। सो कंसिडरिंग द मूव एंड द टाइम टू एक्सपायरिंग, अब यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि मूव कितना हो सकता है और एक्सपायरी कितना दिन बाकी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ में क्या क्या देखा। सबसे पहला जो ग्राफ हम लोगों ने देखा उसमें 5 दिन का एक्सपायरी था, ठीक है। यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी सीरीज एंड यू एक्सपेक्ट द मूव ओवर नेक्स्ट 5 days। बेसिकली आप अगले 5 दिन में मूवमेंट सोच रहे थे। देन बुल स्प्रेड विथ फार ओटीएम इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। बुल स्प्रेड अगर फार ओटीएम में आप चूज करते हो ना तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। 8600 लोअर स्ट्राइक लॉन्ग, ठीक है, एंड 8900 हायर स्ट्राइक शॉर्ट, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर चेक कर पाओ। नुकसान, मार्केट कहाँ है, स्पॉट कहाँ है 8000 पे, ठीक है। इधर देखो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, आपका मार्केट स्पॉट में है 8000, स्पॉट में है 8000, और अगले 5 दिन में मार्केट कहाँ जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबल, हाई प्रॉफिटेबल कहाँ बनोगे, जब मार्केट 8600 पे आप चूज करोगे स्ट्राइक को, ठीक है, ओटीएम पे, या फिर 8900 में चूज करोगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर चूज करोगे तो ऐसे सिचुएशंस में आप एक 300 का स्प्रेड बना के आप कर सकते हो। ये चीज आपको और आगे आगे समझ में आएगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। ऐसा हर हर ग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो बेसिकली ये जो 300 पॉइंट का मूवमेंट है ना सर, ये 300 पॉइंट का मूवमेंट को लेना है और आपको ओटीएम चूज करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल बनना है तो आप 8600 को 8600 लोअर स्ट्राइक लो, ठीक है। लोअर स्ट्राइक आपका 8600 होना चाहिए, मतलब 2 लेग स्ट्रेटेजी है ना, मतलब आपको 2 लेग लेना है। मैंने ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही पर्टिकुलर बाई या सेल करना है। एक बाई करोगे दूसरा सेल करोगे, या फिर जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक बाई एक सेल। लॉन्ग मनी क्या है, लॉन्ग मनी बाई, शॉर्ट मनी सेल, है ना। तो 8600 बाई करने बोल रहे हैं और 8900 सेल करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ग्राफ 2 जो है, ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ, यहाँ पर माना जा रहा है कि आप 15 दिन आपका एक्सपायरी है, तो आप सोच रहे हो कि 15 दिन में मार्केट एक्सपायर करेगा, तो बुल स्प्रेड स्लाइटली ओटीएम प्रॉफिटेबल रहेगा, स्लाइटली ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आपका स्ट्राइक क्या है, या सॉरी आपका स्पॉट क्या है, 8000, याद रखना सर। हाँ, अब 8000 से 8200, ठीक है, 8200 आपका लोअर स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है, और 8500 आपका
हायर स्ट्राइक शॉर्ट होना चाहिए, माने ये आपका बाई होना चाहिए, आपका सेल होना चाहिए। इसी में आपको, आप फिर से ग्राफ को देखो, यहाँ देखो 8,200 और 8,500, ठीक है, मतलब इसमें आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशन। आप देख सकते हो 8,200 में आपको ग्राफिकली सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ यही है, ठीक है, और 500 में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी सिनारियो में आप देखो कम है कंपेरेटिवली, जैसे यहाँ पर भी आप देखो अगर स्ट्राइक और थोड़ा नीचे है तो फिर आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 8,600 में आपको हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर वही मोस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है। सिमिलरली आप रुक जाओ सर, ये तो बस शुरुआत है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ग्राफ 3 को देखो, यहाँ पर आपका एक्सपायरी थोड़ा लंबा है, आप एकदम 25 दिन बाकी है आपका। अब बुल स्प्रेड विथ एटीएम इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, अगर एक्सपायरी में बाकी है एटीएम चूज करने के लिए बड़ा बोला जा रहा है सर। एट दी मनी ऑप्शंस, जिसमें आपका करंट स्पॉट है 8,000, तो ऑब्वियसली अगर आप 8,000 चूज करते हो तो आप एटीएम के आसपास ही रहते हो, मतलब एटीएम ही हो गया एकदम। एंड 8,300 आपका हायर स्ट्राइक हो सकता है, जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्ट्राइक अबव 8,200, 8,200 से ज्यादा अगर हो तो ओटीएम ऑप्शंस हो जाएगा, जिसमें आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, मेक ए लॉस। तो 8,000 आपका लॉन्ग मतलब बाई होना चाहिए, 8,300 आपका सेल होना चाहिए। ग्राफ 4, इसमें आप देखो सर, ग्राफ को देखो, फिर से ग्राफ को देखो तो कैसा 8,000 आपका स्पॉट है ना। अब ये रहा आपका 8,200, 8,000 तो आपका एटीएम है, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सिनेरियो है, आपका 25 दिन का एक्सपायरी है, तो इसमें आपको हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट मिलेगा अगर आपका एटीएम ऑप्शंस में ही एक्सपायर होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो कि 8,200, अगर 200 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना तो आप लॉस में चले जाओगे, 200 तक आपको प्रॉफिट रहेगा, 200 से ज्यादा मार्केट चला जाए तो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है, 8,600 में तो भयंकर लॉस कर लोगे, ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा बाद में सोचने वाला विषय है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हो सकता है किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर समझ तो रहे हैं बट पूरा नहीं, बट पूरा भी समझ आ जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। ग्राफ 4 को भी देख लो। You are at the start of the expiry series and you expect to move to occur by expiry, माने बेसिकली एकदम आप एक्सपायरी में हो, then a bull spread with ATM is most profitable, 8,000 and 8,300, और 8,000 आपका लोअर स्ट्राइक बाई एंड 8,300 आपका हायर स्ट्राइक सेल। The losses with OTM and OTM options depend, माने अगर आप OTM and फार OTM चूज करते हो तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी का जो डीप आउट ऑफ द मनी चूज करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा लॉस कर लोगे। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये वाला आपका एक्सपायरी हिट कर रहा है, ऐसे सिनारियो में अगर आप एटीएम चूज करते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में रहोगे, हाईली प्रॉफिट में रहोगे। 8,200 तक फिर भी आपको थोड़ा प्रॉफिट है, बट अगर आप ओटीएम चूज करते हो या फिर डीप ओटीएम चूज करते हो तो भयंकर लॉस में चले जाओ, ठीक है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्राफ, बोलो। ऐसा नहीं कि आपको ये एटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं बताया था, पहले भी बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন के साथ स्ट्रेटेजी के अंदर बता रहा हूँ। ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। सर एक्चुअली ये सब वही कैलकुलेशंस है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस करके आपको जो वैल्यू मिलेगा, फिर उससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जो आप लोग सब बेसिक्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन का जो बेसिक्स है वहीं पर आप सब सीख के आए सर, कॉल में पुट में सब वहां पर आप लोग को बताया गया था, फिर मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस में, ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ कि आपको जब आप बुल कॉल स्प्रेड करोगे तो आपको कहाँ कहाँ ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4 4 सिचुएशन यहाँ पर दिखाया गया और एक आइडिया दिया गया कि आप कहाँ कहाँ प्रॉफिटेबल हो रहे हो, कहाँ कहाँ आपका लॉस हो सकता है। एक सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट और एक बनाया गया है सर। द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर द सेम अबव, मतलब जो मूव हम लोग 3.75% मान के चले थे, मतलब आपका क्या कॉन्सेप्ट था, आपने ये सोचा था कि मार्केट 3.75% में मॉडरेट मूव करेगा, ये कॉन्सेप्ट के साथ आपने यहाँ पर सोचा था, ठीक है। तो दिस चार्ट सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्राइक्स टू सिलेक्ट अज्यूमिंग यू आर इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज, माने बेसिकली आप किसी भी सीरीज के फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में हो,
तो अगर आप सेकेंड हाफ में हो तो फिर आपका जैसे मानो यहाँ पर कुछ सिनारियो दिया है, टारगेट हिट इन 1 डेज, ठीक है, टारगेट हिट इन 1 डेज, टारगेट हिट इन 5 डेज, फिर आपको यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा टारगेट हिट इन 10 डेज, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा टारगेट हिट इन एक्सपायरी, ठीक है। इसमें भी आपको अलग अलग सिनारियो दिया है और उसका भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है कि कौन से स्ट्राइक पॉइंट में आप हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सिनारियो में रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप अगर आप पढ़ोगे ग्राफ 1 जो है, ठीक है, सबसे पहला वाला जो ग्राफ है आप देख सकते हो, सबसे लास्ट वाला जो ओटीएम है वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। If you expect a moderate move during second half of the series, you expect the move to happen within a day. मतलब आप चाह रहे हो कि एक दिन के अंदर मार्केट पोजीशंस पे पहुंचे। Then the best strikes to opt क्या होगा? OTM। अगर 8600 लोअर स्ट्राइक और 8900 हायर स्ट्राइक होगा तो आपको हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट मिलेगा, है ना। जैसे ग्राफ 2 जो सेकंड ग्राफ था, यहाँ पर अगर आप मॉडरेट मूव सोच रहे हो, आपका अगेन सोच वही है 8000 से 8300, ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज, एंड यू एक्सपेक्ट द मूव टू हैपन ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। अगेन आपका जो स्ट्राइक होना चाहिए ओटीएम होने से बेहतर है, 8600 लोअर स्ट्राइक, आप लॉन्ग चूज करो, 8900 हायर स्ट्राइक, ठीक है। बोथ ग्राफ 1 2 आर सजेस्टिंग द सेम स्ट्राइक बट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी रिड्यूसेस, ठीक है। ये एक्चुअली थीटा के कारण होता है, आपको पता है थीटा क्या करता है, ठीक है। ये देखो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, ग्राफ 1 भी एक दिन में मार्केट हिट करेगा, ठीक है। इसमें भी 8600 ओटीएम चूज किया आपने लोअर स्ट्राइक में और 8900 आपने चूज किया हायर स्ट्राइक में, जिसमें आपका शॉर्ट है, एक में आपका बाई है। लेकिन जिसमें आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है तो आपको पता है थीटा क्या करता है ना। इसमें आपका क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, बट इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, टाइम कम है और आपका हिट हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा करेगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम होने का चांसेस है। सेम टारगेट में ग्राफ 2 में प्रॉफिट कम बट ग्राफ 1 में प्रॉफिट ज्यादा, बिकॉज ऑफ थीटा, ठीक है। एंड अगेन ग्राफ 3 अगर आप देखो, इसमें आपका 10 दिन का एक्सपायरी है। मॉडरेट मूव आपका यहाँ पर भी सोच है, आपका सोच नहीं बदला सर, आपका सोच वही है 8000 से 8300 की तरफ बढ़ना, and you expect the move to happen over the next 10 days and then the best strike to opt a slightly OTM। यहाँ पर आप स्लाइट OTM चूज करो, बेहतर रहेगा, ठीक है। 1 स्ट्राइक अवे फ्रॉम एटीएम, मैंने एटीएम से 1 स्ट्राइक दूर जो भी OTM आपको मिलेगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 दिन के आसपास का सिनारियो हो तो इसमें आई थिंक आप अगर ग्राफ को चेक करोगे, आठ हजार आपका स्ट्राइक था, सॉरी स्पॉट था, ठीक है, मतलब यही एटीएम है, तो 8200 आपका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। 8200 जो है वो आपका नेक्स्ट ओटीएम का सबसे बेस्ट पॉइंट है, वो आपको सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल सिनेरियो दे सकता है, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब बाकी हिसाब आपको पता है, मैं किस तरह से प्रॉफिट का हिसाब होता है ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। पता है कि नहीं सर, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, बोलो सर। कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करा आसे तो सबाई के, तब हम लोग पहले क्लास में ये सब करके आए कि नहीं आए, बोलो। हाँ बोल, क्यों किसी बोल से না স্যার বললেন যে হ্যাঁ মানে বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারগুলো, ঠিক আছে। अच्छा হ্যাঁ तो ये हो गया सर, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ 4 को भी देख लो, ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ 4 को भी देख लो, सिमिलर चीजें आपको दिखाई देगा। अब कहने का मतलब क्या था सर कि आप अगर अपना टारगेट जैसे फिक्स करोगे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। आपने सोचा था मॉडरेट मूव होगा, मॉडरेट मूव के ऊपर डिपेंड करके आप हिसाब लगा लो कि अगर आप ओटीएम चूज करोगे तो क्या प्रॉफिटेबल सिनेरियो हो सकता है, अगर आप एटीएम चूज करोगे तो क्या प्रॉफिटेबल सिनेरियो हो सकता है, अगर आप आईटीएम चूज करोगे तो क्या हो सकता है। अब देख लो एज पर आवर करंट सिचुएशन, हम लोग यहाँ पर हर केस में एटीएम और ओटीएम ही देखा, है ना, एटीएम और ओटीएम ही यहाँ। चलो स्प्रेड क्रिएट करते हैं, समथिंग यू शुड नो, वाइडर द स्प्रेड हायर इज द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन पोटेंशियली मेक। जितना बड़ा स्प्रेड होगा, जितना आपका बड़ा स्प्रेड होगा उतना आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बट एज ए ट्रेड ऑफ द ब्रेक इवन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जीरो से हीरो बनने का जो रास्ता है उसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। आपका ब्रेक इवन भी इंक्रीज करेगा, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो सर स्ट्रेटेजी बनाने का एकदम बेसिक बेसिक कुछ एग्जांपल्स है। जैसे ये 28 नवंबर का एक डेट से लिया गया था, आप कभी कोई भी डेट ले लो, डजेंट मैटर। तो ये फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर सीरीज था,
783 में, ध्यान से देखो सर। अब आज के रेट में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि आप घर पे होमवर्क करना, आज के डेटा में हिसाब लगाना। जैसे मैं आपको यहाँ पर डेटा दे रहा हूँ, सेम डेटा को आप आज के हिसाब से निकालना और मुझे बताना कि क्या हिसाब आ रहा है। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या रहेगा आपका? बुल कॉल स्प्रेड विथ आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक। 3 डिफरेंट बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर लेंगे। पहले सेट 1 ले रहे हैं जिसमें एक आईटीएम और एक एटीएम, ठीक है, 1 आईटीएम एंड 1 एटीएम। तो आपका मार्केट स्पॉट में कितना चल रहा है? मैंने अंडरलाइन का क्या वैल्यू है? 7883, ठीक है। लोअर स्ट्राइक क्या है आपका? आईटीएम को लॉन्ग करना है, जो लोअर स्ट्राइक होगा उसको लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना मैंने बाय करना है। हायर स्ट्राइक जो रहेगा उसको शॉर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर एटीएम। तो 7700 जो है वो आपका लोअर स्ट्राइक है, ठीक है। आईटीएम है 7883 से नीचे है, तो ये आपका आईटीएम हो गया जो आप बाय कर रहे हो, और एटीएम जो है जो आपके आसपास में है 7800 के एकदम आसपास में मंडराएगा, ऐसा सिनेरियो को आप एटीएम बोलोगे। तो एटीएम को क्या करना है? सेल करना। स्प्रेड क्या बना? 7800 माइनस 7700, तो आपका स्प्रेड कितने का है? 100 का। या डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं ना। लोअर स्ट्राइक प्रीमियम जो पे आप कर रहे हो वो है 296, माने बाय करने के लिए आपका प्रीमियम है 296, और हायर स्ट्राइक जो आप सेल कर रहे हो, एटीएम शॉर्ट कर रहे हो ना, सेल कर रहे हो, इसके लिए आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो 227। ये एग्जांपल में दे दिया, आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा। तो आपका नेट डेबिट कितना हो रहा है? बेसिकली आप दे रहे हो 296 और ले रहे हो 227, तो देना है 296, लेना है 227। तो अल्टीमेटली पॉकेट से गया कितना? पॉकेट में गया कि पॉकेट में आया? अरे अल्टीमेटली पॉकेट से गया कि पॉकेट में आया? चलो कितना गया? 69। आपको ऐसा भी स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा जहां पर आपको नेट क्रेडिट होगा, बट ऐसा कोई बात नहीं कि पैसा आने से अच्छा है जाने से खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सोच गलत होता है कि क्रेडिट हो गया मैंने एकदम खुशी। अरे भाई आपका जो क्रेडिट है वो बाद में डेबिट होके खत्म भी हो सकता है। करंट स्ट्रेटेजी में आपको डेबिट दिख रहा है, मैंने अल्टीमेटली आपके पॉकेट से खर्चा हुआ। अगर आप लॉस खाओगे तो मैक्सिमम कितना लॉस खाओगे? जो आपका नेट डेबिट है। हाँ बोलो মানে बोलो। ম্যাক্সিমাম যে প্রিমিয়াম যেটা ডেবিট হয়েছে ওটাই প্রিমিয়ামটা মানে ওই वेरी 30 गुड, यस सर 69, यही आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम 69 प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जो आपका वही स्प्रेड है, जो आपका स्प्रेड है वहां से आपको नेट डेबिट को माइनस करना पड़ेगा। आपका स्प्रेड है 100 का और आपका नेट डेबिट है 69 का, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 31 का। आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा? माने नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन माने नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस आपको कहाँ बनेगा? हाँ बोलो। তাহলে স্ট্রাইক প্লাস প্রিমিয়াম পেড মানে হচ্ছে তোমার 7700 প্লাস হচ্ছে 69 মানে थैंक यू। 769। 7769, माने अगर मार्केट 7769 में पहुंचता है तो आप बेसिकली ब्रेक इवन अचीव करते हो। कंसीडरिंग द आउटलुक इज मॉडरेटली बुलिश, 7769 ब्रेक इवन इज इजीली अचीवेबल, है ना। अगर मॉडरेट बुलिश है और आपका मार्केट, अगर आपका मार्केट स्पॉट मार्केट है 7883, तो 7769 अचीव करना बहुत बड़ा बात तो नहीं है सर, इजीली अचीव हो जाएगा। क्या बोलते हो? ये इजीली अचीव होगा कि नहीं होगा? হ্যাঁ হ্যাঁ ये आराम से हो जाएगा। तो रिमार्क्स हाउएवर द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 31, है ना। स्क्विंग रिस्क इज 69, रिवॉर्ड इज 31, है ना। तो आप हिसाब लगा लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 69 पॉइंट हो सकते हो, 31 पॉइंट ले सकते हो। अब आपको मैं लास्ट दिन सिखाया था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर लो कैलकुलेशन। आगे देखते हैं सर। ये क्लासिक कॉम्बो है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना दिनों से ये लिया जाता है। अब लोअर स्ट्राइक चूज करो 7800 का। याद करना आपका स्पॉट क्या है, आपका निफ्टी है 7883 पे, आपका लोअर स्ट्राइक एटीएम है, मैंने 7800 के जोन के आसपास लेना है आपको। तो 7800 में आप निफ्टी चूज कर रहे हो ऑन दैट टाइम, ये पुराना डेटा है। लोअर स्ट्राइक 7800 है, हायर स्ट्राइक स्पॉट से ज्यादा होगा, हायर स्ट्राइक भी आप एटीएम चूज कर रहे हो, ठीक है 7900, माने क्लोज में ले रहे हो सर, ठीक है। क्लोज में ले रहे हो या हल्का सा ओटीएम बोल सकते हो आप, ठीक है, हल्का सा ओटीएम भी बोल सकते हो आप।
स्लाइट ओटीएम 7800, 7900 या आप इसको 8000 तक भी ले सकते हो, इसको एटीएम ओटीएम स्ट्राइक्स भी बोला जाता है। तो अगर आप 7800 और 7900 लेते हो, आपका स्प्रेड क्या हो जाएगा? अगेन 100 का। अच्छा, लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम पे है 227 और हायर स्ट्राइक में प्रीमियम रिसीव है 167। और ये प्रीमियम का खेला तो आपको ऑप्शन चेन में ही पता चल जाएगा। प्रीमियम का खेला, लास्ट प्रीमियम क्या चला है ये आपको ऑप्शन चेन में पता चल जाएगा। और अगर आप रियल लाइफ में जब प्रीमियम पे करने जाओगे तब भी पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है। बट बाकी आपको यहाँ पर प्रीमियम का सारा डिटेल्स अवेलेबल है कि जब आप आईटीएम में होते हो तब आपका प्रीमियम क्या होता है। मैं कॉल के केस में बोल रहा हूँ, जब आप ओटीएम में होते हो तब आपका प्रीमियम पेमेंट कितना होता है। तो नो डाउट हम सबको पता है कि ओटीएम में प्रीमियम पेमेंट कम होता है, आईटीएम में ज्यादा होते हैं, एटीएम में मॉडरेट होते हैं, वी नो दैट। अब आगे देखिए सर, यहाँ पर आपको 227 का आपका पेमेंट है, 167 का आपका रिसीव है, तो 60 का डेबिट है। तो मैक्सिमम लॉस अगेन 60, मैक्सिमम प्रॉफिट 100 माइनस 60 40। ब्रेक इवन कितना हो जाएगा? स्ट्राइक प्लस लॉस 7860। रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर बट द ब्रेक इवन इज हायर, है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा है पहले वाला से, पहले वाला सेट से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा है। 60 लॉस के लिए 40 प्रॉफिट, कंपेरेटिवली सही ठीक ठाक है। बट यहाँ पर ब्रेक इवन आपका हायर है, माने आपको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए आपका स्पॉट कितना है? 7883 और यहाँ पर ब्रेक इवन कितना है? 7860। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो बनेगा दोनों स्ट्रेटेजी मिला के। 7860 में आप नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट करोगे ना लॉस करोगे। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेक इवन में एक दिक्कत है, आपका जो ब्रोकिंग फार्म का जो चार्जेस वगैरह है ना वो तो लग जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन से ज्यादा करना है क्योंकि अंदर कॉस्ट भी छुपा होता है। ठीक है, तो वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन सिर्फ इनफ नहीं होता, बिकॉज कॉस्ट भी एक छुपा होता है जिसे समझना पड़ता है। नाउ बुल कॉल स्प्रेड विद ओटीएम एंड ओटीएम। ठीक है, अब चलो लोअर स्ट्राइक जो है वो आप 7900 ले लो। ठीक है, हायर स्ट्राइक आप 8000 ले लो। तो कहीं ना कहीं एक हल्का ओटीएम जोन में आप हो, ठीक है, या एटीएम के क्लोज में है। स्प्रेड कितना है? 8000 और 7900, 100 का है। लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम पे करो 167, हायर स्ट्राइक में प्रीमियम पे करो 160। कम ही होगा सर, है ना, पहले वाले से, बिकॉज ये दोनों ओटीएम जोन के अंदर आ जा रहा है। कहीं ना कहीं आपका नेट डेबिट हो रहा है 51, तो मैक्सिमम लॉस कितना खाओगे? 51। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 51 49। तो 51 का लॉस झेलने के लिए 49 का प्रॉफिट अच्छा है सर। ब्रेक इवन थोड़ा हायर है, 7951 हो जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड इज अट्रैक्टिव। रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। सो द पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है, द रिस्क रिवॉर्ड चेंजेस बेस्ड ऑन द स्ट्राइक्स that you choose. However, don't just let the risk reward dictate the strike that you choose. Do not. You can create a bull call spread with two options. For example, buy 2 ATM options and sell 2 OTM options. ऐसे भी कर सकते हो आप। पर ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि 2 लेग चूज करना है, तो आप 2 लेग में ऐसा कर सकते हो कि 2 ATM बाई करो, 2 OTM सेल करो। ज्यादा करने से आपका मार्जिन ओवरऑल कम होता है। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कंपेरेटिवली आपका मैक्सिमम खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपका लॉट बढ़ रहा है ना। तो 2 एटीएम ऑप्शन बाय कर सकते हो, 2 एटीएम सेल कर सकते हो। लाइक अदर थिंग्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग, डू कंसीडर द ग्रीक्स थीटा इन पर्टिकुलर, जो मैं आपको आगे आगे कॉम्बाइन करूंगा। आई सपोज दिस चैप्टर इज लेट डाउन फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्प्रेड। आपको स्प्रेड का आइडिया लग गया। अब धीरे धीरे मैं आपको और भी आगे आगे स्ट्रेटेजी में लेके जाऊंगा जहां पर मॉडरेट बुलिश बियरिश तो है ही, इसके साथ साथ आपको मतलब जो एक्सट्रीम बुलिश बियरिश का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके साथ में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। कल के क्लास में मैं आपको बाकी चर्चा करूंगा जिसमें मैं कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग आर्बिट्रेज, ठीक है, ये सब चीज में धीरे धीरे आपके साथ स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई सब बताऊंगा आपको। और भी मजेदार स्ट्रेटेजी मिलेगा सर, लेकिन एक बेसिक्स आइडिया के लिए। और ये दोनों बहुत पॉपुलर है, बुल कॉल एंड बुल पुट, ये बहुत पॉपुलर है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक जैसा स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यहाँ पर बना के देखा, ठीक है, स्प्रेड क्रिएट करके, आप सिमिलर स्ट्रेटेजी करंट निफ्टी के ऊपर बना के ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, कि आपका क्या सिनेरियो बन रहा है, और ऐसा ही आप रिमार्क्स भी दो कि आपका क्या ब्रेक इवन हो रहा है। आप ऐसा ही एक सिचुएशंस बना लो कि भाई आपका क्या बन रहा है। ठीक है, सिमिलर सिचुएशंस बना के आप करंट निफ्टी के ऊपर
कर सकते कि नहीं कर सकते? हेलो, बस वहां पर पुराना डेटा से बनाया गया, यहाँ पर आप न्यू डेटा से बनाओ ना। एटीएम ओटीएम जो चूज करना है करो सिमिलर तरीके से, और फिर बताओ कि आपका क्या सिचुएशन बनना है, और ग्रुप में शेयर करो, देखते हैं कि कौन कितना होमवर्क कर रहा है, प्रैक्टिस हो जाएगा सर, इसीलिए बोलता हूँ। पीयूष पीयूष কিছু বলছিস? পীযূষের আনমিউট আছে। यस सर बोलो। विश्वजीवन, गीतिका, पूर्वा, संपद, सुमित तथा आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাপারটা বোঝা গেছে কিরকম ভাবে বেসিক লেভেল স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়? আইডিয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না? হচ্ছে তো, আস্তে আস্তে আরো আইডিয়া হবে, ঠিক আছে? এই তো সবে শুরু করলাম, কালকের ক্লাসে আরো স্ট্র্যাটেজির উপরে আরো ডিসকাশনস বাড়াবো, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এতটাই রাখি, মানে आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल आते हैं बात करने के लिए। ओके सर, ओके बाय, टाटा, ওকে বাই বাই। बाय। রাখছি স্যার স্যার। বলছিলাম ओके বল। বলছিলাম স্যার আমি ওদের সাইডে স্যার এই নিজের আইডিটা